औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। Hello my dear students and honorable parents, welcome to back to our school in YouTube channel. I am your teacher लियाकत हुसैन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 11 सितंबर आने को है। ये वो अजीम सानहे का दिन है जिस दिन हमारे प्यारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए थे। आज हम क्लास 3 की सोशल स्टडी में से लेसन 14 द फादर ऑफ द नेशन पढ़ेंगे। बच्चों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की और आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अलहदा वतन हासिल करने के लिए कोशिशें की। वो मुसलमानों के लिए एक अलहदा आज़ाद वतन हासिल करना चाहते थे जिसमें मुसलमान आज़ादी की सांस ले सकें और अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें। कायद आज़म की अजीम कोशिशों से और मेहनत के बाद बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। आपने पाकिस्तान बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, यहाँ तक कि आपकी सेहत भी ख़राब हो गई और पाकिस्तान बनने के 1 साल 1 माह बाद वो इंतकाल कर गए। आपका मकबरा कराची में है। तो बच्चों, लेसन शुरू करते हैं, लेकिन लेसन शुरू करने से पहले आपसे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है ताकि कोई स्टूडेंट महरूम न रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 14 है सोशल स्टडी का, क्लास 3 द फादर ऑफ द नेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वाज कायद आज़म बोर्न? इसका आंसर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was born on 25 December 1876 in Karachi. Lesson number 2, who gave him the title of Qaid Azam and why? Answer is, the title of Qaid Azam was given to him by the Muslims of the subcontinent for his great services to the Muslims of this part of the world. Question number 3 है, where was Qaid Azam educated? Answer is, he was educated at Sindh Madrasatul Islam in Karachi and Lincoln's in England. Question number 4, what did he try sincerely? Answer is, he tried his best to have Hindu-Muslim unity. He made great efforts to unite all the Indian Muslim League. By his sincere efforts, Pakistan came into being on 14th August 1947. Question number 5. In reply to the bad desire of Hindu, what did the Qaid do for the Muslims of India? Answer is, the Hindus wanted to make the Indian Muslims their slaves and second-grade citizens. He joined All India Muslim League. Question number 6. What kind of country did the Qaid want to establish for the Indian Muslims? Answer is, he worked day and night to establish a separate homeland for the Indian Muslims
in which they could live according to the basic principles of the Quran and Sunnah. Question number 7. When did the Qaid die and where he buried? Answer is, our beloved leader passed away on September 1948. He was laid to rest in the middle of the city, which is also his place of birth. Fill in the blanks. Quaid-e-Azam was born in family of a, fill in the blanks में आएगा, a businessman, Mr. Poonja Jinnah. Number 2. He was born on 25th December 1876 in Karachi. Number 3. He was given the title of Quaid-e-Azam by the, fill in the blanks में आएगा, Muslims of the subcontinent. Number 4. He was given his title for his great, fill in the blanks में आएगा, services to the Muslims of India. Number 5. He was educated at Sindh Madrasatul Islam, खाली जगह में आ रहा है, Sindh Madrasatul Islam in Karachi and Lincoln's Inn, खाली जगह में आया, in England. Number 6. He became a barrister, खाली जगह में barrister. Number 7. He started his political career by joining, fill in the blanks, Indian National Congress. Number 8. He made great efforts to unite all the Muslims of India under the flag of, fill in the blanks में आ रहा है, Muslim League. Number 9. He wanted to establish a separate आ रहा है यहाँ पर, homeland for the Indian Muslims. Number 10. He wanted Muslims to India to live in Pakistan according to the basic principle of the Quran and Sunnah. Fill in the blanks में आ रहा है, Quran and Sunnah. C में select the correct one. अब इसमें नंबर 1 में है, Quaid-e-Azam was born on, हमारे पास लिखा है 26, 29, 25, 27, हमारे पास आएगा 25 दिसंबर. नंबर 2. Quaid-e-Azam become a, करेक्ट वर्ड क्या है, ऑफिसर, डॉक्टर, बैरिस्टर, टीचर, तो करेक्ट वर्ड है बैरिस्टर. Quaid-e-Azam started his career by joining, यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आएगा, हमें बताए गए मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तहरीक-ए-इंसाफ, नन. तो 3 में आ रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस. नंबर 4 में पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14, खाली जगह में क्या आ रहा है, यहाँ पे दिया है सितंबर, नवंबर, अगस्त, जुलाई. तो नंबर 4 में आ रहा है करेक्ट वर्ड अगस्त. नंबर 5. Quaid-e-Azam passed away on 11th, हमें दिया गया है सितंबर 1948, जुलाई 1922,
अगस्त 1950, जून 1966। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सितंबर 1948। तो ये आज आपकी 14 लेसन द फादर ऑफ द नेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप इसको अच्छी तरह से लिखें, याद करें, अपना वक्त ज़ाय किए बगैर। जैसा कि आपके इल्म है कि 15 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं, आप स्कूल की तैयारी कर लें। और जो कोविड-19 में जो आपको बताया गया क्या एहतियात करनी है, जो लॉकडाउन में आपको बताया गया क्या तैयारी करनी है, क्या एहतियात करनी है, मास्क होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और फासला भी होना चाहिए। जब आप स्कूल जाएं, अपनी वाटर बोतल होनी चाहिए, गिलास होना चाहिए अपना, ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं, खेल कूद नहीं। अपने सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होगी और पढ़ाई होगी बस, और आप अलग थलग होके घर वापस आ जाएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। आपका टीचर लियाकत हुसैन।